Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 3 by Coral Publishers. And here's the book, children, English Literacy. And today we are going to start with chapter number 4. And the name of the chapter is The Story of Aeroplane. So, do you know where this aeroplane came from? Aeroplane कब बने, कैसे बने? This we are going to learn here. So in ancient times, people suffered many difficulties in going anywhere. तो बहुत पहले की बात है, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था अगर उन्हें कहीं भी जाना होता था. No one ever thought that someday the man will fly in the sky like a bird. किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो है आसमान में बर्ड्स की तरह उड़ेंगे. A century ago, Wright brothers lived in USA. एक सेंचुरी पहले की बात है, मीन्स 100 of years के पहले की बात है कि जो राइट ब्रदर्स थे, ये है राइट ब्रदर्स, ये कहाँ रहते थे? यूएसए में रहते थे. They were skillful young men. ये काफी ज्यादा skillful थे, young थे, and they first used their skills to make a glider. उन्होंने अपने skills को use किया glider बनाने में. A glider is an aeroplane which has no engine. Glider क्या था? एक ऐसा एरोप्लेन था जिसमें इंजन नहीं था. It floats on the wind like a kite. Kite की तरह आसमान में हवा पे उड़ा करता था. A man can sit in a glider and steer it. तो कोई भी एक इंसान ग्लाइडर में बैठ सकता था और उसे मूव कर सकता था. But since it is without an engine, it cannot stay in the air for a long time. क्योंकि इसमें इंजन नहीं था तो आसमान में हवा में ज्यादा देर तक नहीं रह पाता था. In those days, motor cars had petrol engines which were very heavy. तो उन दिनों क्या होता था, जो मोटर कार्स थे उसमें पेट्रोल इंजन हुआ करते थे जो काफी ज्यादा हेवी हुआ करते थे. The Wright brothers invented a very small and light engine. तो राइट ब्रदर्स ने क्या किया, एक बहुत ही छोटा और हल्का इंजन बनाया. They put it in their glider. उन्होंने उस इंजन को अपने ग्लाइडर में लगाया. Then one of them sat in the aeroplane and started the engine. तो फिर अब उनमें से एक जो है बैठा उस एरोप्लेन में और इंजन को स्टार्ट कर दिया. The wings of the aeroplane were held by some volunteers. और जो विंग्स थे उस एरोप्लेन के, उसे कुछ वॉलंटियर्स ने पकड़ रखा था. When the aeroplane picked up speed, they let it go. जैसे एरोप्लेन ने स्पीड को पकड़ा, उन्होंने उसे छोड़ दिया. The plane first ran along the ground. प्लेन जो है पहले ग्राउंड पे चलने लगी, दौड़ने लगी. Then it rose a few meters into the air. और फिर वो आसमान में उड़ने लगी, उठने लगी. It was the first flight of a man. वो मैन की पहली फ्लाइट थी, पहली बार वो आसमान में उड़ा था. This happened on the 17th December 1903. और ये कब हुआ था? 17 दिसंबर को 1903 में. The world soon came to know about the success story of the Wright brothers. और ये जो वर्ल्ड था ये जल्दी ही राइट ब्रदर्स की इस सक्सेस स्टोरी को जान चुका था. They became very famous and popular. ये जो राइट ब्रदर्स थे ये बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर हो गए. As time passed by, bigger and better aeroplanes were made. और जैसे जैसे समय बदलता गया बहुत बड़े बड़े एरोप्लेन्स बनते गए. Today aeroplanes carry hundreds of passengers and fly at a great speed all over the world. आज के टाइम में जो एरोप्लेन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं और हज़ारों लोगों को कैरी करते हैं. You can travel thousands of kilometers in a few hours. कुछ ही घंटों में आप thousands of kilometers जा सकते हो. But air transport is a very expensive means of transport. लेकिन ये जो air transport है वो काफ़ी ज़्यादा expensive है, काफ़ी ज़्यादा खर्चीला है. It is mainly because a lot of fuel is needed in the engine. ऐसा इसलिए हो सकता है कि ये जो इंजन है इनमें काफ़ी ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है. And it should be of superior quality. और ये जो है फ्यूल हो सकता है या जो इंजन है वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए. दिस फ्यूल इज मच मोर एक्सपेंसिव दैन द ऑर्डिनरी फ्यूल. ये जो फ्यूल यहाँ पे यूज होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है जो हम दूसरे मोटर कार्स में यूज करते हैं.
Secondly, the passengers traveling by aeroplanes are provided with various services during the journey. और दूसरी बात यह है कि एरोप्लेन में जो लोग ट्रैवल करते हैं उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, वहां पे बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं, तो इसलिए भी इसके जो टिकट है वो काफी महंगे हैं। इन द बिगनिंग द एयरपोर्ट्स यूज्ड टू बी स्मॉल। पहले क्या होता था, पहले जो एयरपोर्ट थे काफी ज्यादा छोटे हुआ करते थे, बट एज मोर एंड मोर पीपल बिगेन टू फ्लाई and aeroplanes became bigger and bigger, there had to be bigger airports. तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया बहुत सारे लोग ट्रैवल करने लग गए प्लेन में, और जिसकी वजह से प्लेन्स के साइज भी बढ़ने लग गए और लास्ट में इन एयरपोर्ट्स के साइज भी बढ़ाए गए। Larger enough for big fast airplanes to land and to take off. इतना बड़ा बनाया गया इन एयरपोर्ट्स को जिस पर आराम से एरोप्लेन जो है लैंड हो सके और फ्लाइट ले सके, टेक ऑफ कर सके। They had to cater to the needs of the hundreds of passengers and their luggage. तो यहाँ पे इनको ध्यान रखना होता था बहुत सारे हजारों लोगों के और उनके लगेज के भी। The way on the ground where the airplane ran before taking off is called the runway. वो जगह जहाँ पे एरोप्लेन पहले चलता है और फिर उड़ान भरता है, उस चलने वाली जगह को हम रनवे कहते हैं। The airplanes used specially to carry goods are called cargo planes. ऐसे भी कुछ प्लेन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कैरी करते हैं, और ऐसे प्लेन्स को हम कार्गो प्लेन कहते हैं। एरोप्लेन्स ऑल्सो कैरी न्यूज़पेपर्स एंड लेटर एक्सेट्रा। एरोप्लेन्स में आपको न्यूज़पेपर और लेटर्स भी कैरी करते हुए मिलेंगे। सेंडिंग लेटर्स एंड पार्सल्स बाय एयर इज कॉल्ड एयर मेल। और जब हम लेटर और पार्सल एयर से भेजते हैं उसे हम एयर मेल कहते हैं। अ वेरी स्मॉल एरोप्लेन इज कॉल्ड अ हेलीकॉप्टर। काफी छोटा सा एरोप्लेन जो है उसे हम हेलीकॉप्टर कहते हैं। एंड इट कैन लैंड ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। और वो एक छोटे पीस ऑफ लैंड पे भी लैंड कर सकता है। इट कैरीज ओनली अ फ्यू पैसेंजर्स। उसमें सिर्फ कुछ ही लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ ही पैसेंजर्स आते हैं। एंड हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूजफुल टू ड्रॉप फूड पैकेट्स। फूड पैकेट्स को ड्रॉप करने के काम आता है, ये मेडिसिन को ड्रॉप करने को काम आता है। इन रिमोट एरियाज इन केस ऑफ एनी नेचुरल कैलामिटी। मान लो कि कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए, फ्लड आ जाए, फेमाइन हो जाए, तो ऐसे केसेस में ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं क्या करते हैं, फूड और मेडिसिन को ऐसी जगहों पर ड्रॉप करने के काम में आते हैं। So children, this was the chapter. Now let's move on to word meaning. Skillful means expert. Glider क्या है? An aeroplane with an engine. Floats means swim. Steer to guide a vessel, motor car, bicycle, etc. Volunteer, one who joins welfare service out of his own free will. Feat, an act of skill or courage. To land is to come to the ground. To take off is to fly. To leave the ground. To cater is to fulfill. Remote is far off. Calamity is a disaster. So these are the word meanings, children. Now let's quickly move on to the book exercise, which is let's do exercise. So children, let's move on to read and write section here. A exercises, take the correct answer. The Wright brothers live in USA, UK or USSR. So do this yourself. Now the second one is the glider has no driver, chauffeur or engine. So the correct answer is engine. The feat was achieved on the 17th December 1900, 1903 or 1963. So it is 1903. Now let's move on to B exercise, fill in the blanks. Helicopters can land in a small place. So fourth one is here. So do the rest of the questions yourself, children. Read it and do it. And with this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.